नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर हिमांशु आचार्य। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्हें हाल ही में विजनरी इंडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. It is a very good afternoon and pleasant moment for me that I can get together and give a bit description about me. As I am coming from, my name is Himanshu Acharji. Sorry, my name is Dr. Himanshu Acharji. I am coming from Assam, Silchar, and I am get the opportunity to awards, Visionary Indian Awards, which is really a pleasant moment for that day, as because I am serving as a civil engineer in the Government of Assam, and then I do so many works as a social activist regarding the people of the remote area. And the people of the remote area in Assam is always backward than other state of the India, and Northeast is really the suffering from water, drinking water, etc. So I preference my subject in MTech, the quality of surface water and subsurface water, and on this basis of my subject, I do the work in the rural and remote area, and as a social activist in very beginning of my, in addition my normal duty of government. So if I get the time, then I shall do so many works regarding the rural development, like academic and fair communication and education and culture, etc. And I have got retirement from my service the last few months, and I involved myself in various social activities like the free tuition of some people of the rural areas by doing the Assam Diploma Engineer Council. In the banner of Assam Diploma Engineer Council, we get some tuition to how to pass the PAT exam. PAT means Polytechnic Admission Test exam, and other I may perform my duties as a technical advisor for Rural Dynamic Development Council, which is purely based on the rural people, their socio-cultural and their other economic, socio-cultural, etc., and how to develop the education of the rural areas. We make a demand to establish a college or higher secondary school in the remote areas and give the demand to the people. And we also do some water demand in hill area. And in my service life, I do so many job, and there is another problem, that is SBM, or sort of toilets and sanitation, etc. So government has taken a part. पहले ये था टोटल सैनिटेशन कैंपेन, लेकिन इसके बाद वो आया जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन के बाद वो स्वच्छ भारत मिशन. तो थ्रू स्वच्छ भारत मिशन we have do so many works and community sanitation program also, and there is so many development I shall try to do in the next period or tenure of my life, to spend my maximum time for rural development work, etc. जी, तो आपने असम के लिए और कौन कौन से कार्य किए हैं, हम इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। अभी मैं जो गाँव में निकला, इसमें एक स्कूल था, वो तो हायर सेकेंडरी नहीं, हाई स्कूल लेवल था। अभी मैं सोच रहा हूँ वो एक्सटेंडेड हाई स्कूल अगर और एक स्कूल और कॉलेज इधर में एस्टेब्लिश करना, और इधर कोई स्टडी सेंटर,
तो स्टडी सेंटर हम तो अभी if I try to open a college, then it is not possible to take all the liabilities from our side. So we can take a approval of study center, and through this study center, the people can get the facility to attend the classes in a week or twice in a week, and they can appear the higher studies or exam on distance mode of education. Just like, and for drinking water we can try to develop. So हर घर जल, मोदी जी ने दिया हर घर जल हर घर नल, तो एक कार्यक्रम में बहुत सारे विलेज अभी कवर्ड अप है। मैं पीएचई जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आसाम में काम किए थे तब देखा है कुछ वाटर पैकेट अभी तक नहीं हुआ, माने खाली है। उसका डिमांड के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम लेगा और डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ ऑफ इंजीनियरिंग के साथ मिलकर और पीएनआरडी के मिलकर वही जगह में पानी पहुंचने के लिए और हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग एक भी काम करेंगे जिसका रूरल फेयर कम्युनिकेशन नहीं है, उसमें हम लोग कुछ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट और हमारा जो एनजीओ है इसके माध्यम से थोड़ा सा छोटा जो विलेज रोड है वो इम्प्रूव करेगा। और जिसका हम लोग आजकल ये करता है, मेरा एनजीओ की तरफ से हम लोग जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्ज़ाम में जो मेरा एरिया वाइज ब्लॉक वाइज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ मार्क मिला, तो ईच ब्लॉक में हम लोग हायर सेकेंडरी लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड और HSLC लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड इच और ब्लॉक डेवलपमेंट एरिया में एक देने की प्रयास कर रहा हूँ। तो सोच रहा इसीलिए क्योंकि उसका जो बच्चे है उसका एक इंस्पायरेशन हो जाए इसीलिए। और हम लोग ये भी सोच रहा हूँ जो जिसका बच्चे इधर पढ़ाई लिखाई करता है, किताब की कमी है, तो इसके लिए हम लोग जो नई किताब तो हम लोग देंगे और थ्रू आवर एनजीओ सम बुक्स विच आर the student passed out and the remaining books may we can distribute among the student of the rural people or rural area, they can get the financial support. It is जैसे कि आपको विजनरी इंडियंस अवार्ड अभी जो कि मिला है, तो आपको किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? और देखिए वो तो विजनरी अवार्ड वो तो इधर में लिखा है रियल लाइफ के बारे में मैं बताने से, देखिए मैं तो एक रिमोट एरिया से मैं पहले गए थे, तो इसके बाद हम लोग कोशिश कर रहा ये रिमोट एरिया कैसे डेवलप्ड हो। इसीलिए मैं और जब ट्राइबल एरिया गए थे तो देखा इधर में पानी का बहुत कमती है, तो हम लोग दोनों पहाड़ में एक इधर में एक थोड़ा सा ट्राइबल गांव बूढ़ा के साथ मिल के इधर कैसे पानी आए इसीलिए ऑर्गेनाइज किया। तो ऊपर से वो लोग कैसे आए, बोला इधर तो नहीं होगा, बोले होगा इधर। तो एक डिमांड दिया था, तो इन बिटवीन टू हिल्स, तो बीच में एक पाइपलाइन बना के नीचे में पूंजी वाले को जो ऊपर से पानी आया नीच में नहीं आया, नीच में तो नहीं उठाने से बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए ये भी किया था। और मैं तो जब पीएनआरडी में था मैं कुछ दिन के लिए, तो देखा इधर में गवाले के लिए IOI आजकल जो PMAY के अंडर देता है, तो इधर बहुत सारी कमी है। विलेज जो है आजकल तो DP से ये दे देता है, लेकिन उसका गौर बहुत ही अभी बाकी है, तो इसीलिए ये भी हम लोग कोशिश करेगा उसके सफलता के लिए। और मैं भी मेरा इधर में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए इधर एक मंदिर पड़ा हुआ है, तो इसका इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो मैं खुद अपना फाइनेंस से एक महादेव का मंदिर भैरव मंदिर बोलता है ये मैं बना के दूँगा, अभी दे रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मैं इसके पहले में एक अवार्ड मिला इसी के लिए, मैंने जब मैं सर्विस में था तो नेशनल B.R. अम्बेडकर नेशनल एक्सीलेंसी सर्विस अवार्ड ये भी मिला 2020 में। इसके बाद मैं मिला बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय पुरस्कार।
ये भी मिला। तो इसीलिए मैं यही रूरल डेवलप होने से हमारा गांव इंडिया इज ए बिग क्रांति, इट इज बेस्ड ऑन द रूरल एरिया एंड विलेज मेड एरिया, so we can try to develop our India. First we can try to develop the rural people of the country. जी, तो आगे असम के विकास के लिए आपकी क्या क्या प्लानिंग है उसकी डेवलपमेंट के लिए? देखिए, हम जब मुजीदी और हमारा इधर हेमंत बिश्व सरकार जी हमारा चीफ मिनिस्टर है, तो वह बहुत ही डायनामिक चीफ मिनिस्टर है। तो उसका जो है जो प्रोग्राम लिया, तो रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम आजकल लेता है। तो उसका एक ही है, प्रोग्राम तो ले लिया, उसका डेवलपमेंट के लिए मैं अभी तो रिटायर्ड हो गया, अभी मैं यही कोशिश करूँगा उसका डेवलपमेंट के लिए मेरा प्रयास जितना जारी हो, ये एनजीओ के माध्यम में या मैं किया असम डिप्लोमा इंजीनियर काउंसिल, तो उसका बहुत सारे आदमी रिटायर्ड हो जाता है और कुछ नई वाला नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो उसको दोनों बीच मिला के हम लोग कोशिश करेगा एक टीम बना के हम लोग असम के डेवलपमेंट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम कैसे आगे बढ़ जाए, यही एक प्लानिंग करेगा। सोचता हूँ नेक्स्ट जनवरी से हम लोग ये पूरी तरह से जस्ट विंटर सीजन आने के बाद पूरी तरह से हम लोग एक सूचना ले लिया इसके ऊपर। जी, जितना कि पहले की बात करें तो अब तक आपने काफ़ी डेवलपमेंट के लिए कार्य किया है और आगे भी आपका यही प्रयास है कि उसका डेवलपमेंट हो। इसी के साथ हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप इस कार्य को जारी रखें और असम का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।